I am at Tapovan in the 34 acres area which has been earmarked for Sadhugram and which has seen consistent protests by Nashikers asking the corporation to not go ahead for chopping of the trees for Sadhugram and for the tents. This is basically a people's movement because once last month NMC and the authorities have issued a notice to cut 1800 trees from this area. This is a Tapovan area, the only green area in and around Panchavati. The city of Nashik has been protesting to protect its green lungs. Save Nashik! Save Tapovan! Save Nashik! Save Tapovan! Save Nashik! Save Tapovan! Save Nashik! This beautiful temple town has an equally long history. Mentioned in Ramayana, the region is a host to several ancient temples and caves. May it be Tapovan or Panchavati, the places are revered historically. The government hasn't done the tree census since 10 years. They are misguiding the political leaders also, CM also, that there is no place left in Nashik other than this. And it is very unfortunate for Nasikkar, for all Maharashtra, that for flimsy reasons they are cutting trees. Opposing the hacking of trees at Tapovan, children, elderly and ordinary citizens have been protesting here each day, asking the municipal corporation to drop the plan. 300 trees are already cut down in the STP zone, which is also a green zone. For making the STP the sewage treatment plant, we are making the sewage treatment plant for purifying the river and cutting the trees and damaging our environment. So we don't want our Nashik to become Delhi. Even right-wing groups have been up in arms against the BJP government. आज इस नासिक तपोवन भूमि में जो सरकार ने भूमिका रखी है उसके खिलाफ हमारा आंदोलन है, क्योंकि ये तपोवन यहाँ पर सब वृक्ष लगे वाले हैं, लेकिन एक वृक्ष को तोड़कर यहाँ अगर वो कोई अलग चीज़ बनाना चाहते हैं तो ये सब नासिकरों का इसके लिए पूरे खुलेआम विरोध है, क्योंकि झाड़ लगाना ये बहुत बड़ी बात है। आज नासिक के लिए ऑक्सीजन जो देने वाली चीज़ है ये सभी है तपोवन है, और अगर आप तपोवन को तोड़ देंगे तो ये संभाजी ब्रिगेड कदापि सहन नहीं करेगा। During the municipal corporation elections, BJP's own ally Shiv Sena stood against the BJP, putting up banners against the plan to cut trees. नाशिककरांच्या भावना जर नीट बघितल्या तर हजारो नाशिककर रोज या ठिकाणी येऊन आंदोलन करतायत, निषेध करतायत आणि लोकशाहीच्या मार्गानं ही झाडं तोडली गेली नाही पाहिजे यासाठी वेगवेगळ्या पद्धतीनं निदर्शनं होत आहेत. परंतु कुठेतरी महापालिकेचं प्रशासन हे त्यांच्या आडमुठे धोरणावर अत्यंत ठाम आहे. ही झाडं तोडूच अशा पद्धतीचं त्यांचं धोरण आहे आणि म्हणून शिवसेनेला ह्या आंदोलनात सहभाग घ्यावा लागला. मुळात असं हे तपोवन आहे, म्हणजे प्रभू रामचंद्र इथे ज्यांचा वास आहे आणि नाशिकचं नावच पहिल्यांदा गुलशनाबाद असं होतं, म्हणजे फुलांचं शहर, आणि हा जो भाग आहे इथं दंडकारण्य होता. त्याला एक इतिहास आहे आणि हे जे पंचवटी नाव आहे हे सुद्धा 5 वडांहून पडलं आहे. तर ही झाडं आणि नाशिकची ओळख ही एक आहे आणि ही ओळख कुठेतरी पुसली जाऊ नये हा आमचा महत्त्वाचा विषय. The demand isn't just to protect the green cover, but also to clean the river. Devang Jani has been fighting a lone battle for this cause for River Godavari for almost a decade now. At the banks of Godavari River, where Kumbh is going to take place, I'm being joined by environmentalist Devang Jani. He is someone who has been fighting for the rejuvenation of Godavari River for over a decade now. Devang Jani ji, thank you for speaking with the Hindu. Please tell us about your struggle, the petition that you had filed. What is the status now and what is this fight for the rejuvenation of Godavari? गोदावरी रिवर बेड के अंदर 1717 एंशियंट कुंड थे। वो कुंड जो महान व्यक्ति थे अहिल्यादेवी होळकर, गोपीबाई पेशवे, या महान व्यक्ति ने एक कुंडों की रचना की थी, कुंडों का निर्माण किया था। नासिक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने 2002 में रिवर बेड के अंदर कॉन्क्रीटाइजेशन करके वो कुंड वगैरह बुझा दिए थे। वो कुंड डिकॉन्क्रीटाइजेशन करके उसके अंदर के जो जीवंत झरने उसको पुनर्जीवित करना, गोदावरी नदी को उनको
जो बहने का अधिकार है वो बहने का अधिकार प्रदान करना, और जो महान व्यक्ति ने जो कुंड बांधे गए थे वो कुंड रिजुनेट करना। इसके लिए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बॉम्बे हाईकोर्ट में फाइल की थी। उसके ऑर्डर के हिसाब से 5 कुंड डिकॉन्क्रीटाइजेशन किए गए। 5 कुंडों में से 3.5 लाख किलो सीमेंट कॉन्क्रीट हमने निकाला। वो 3.5 लाख किलो सीमेंट कॉन्क्रीट में से निकालने के बाद उसके अंदर के जो जिंदे पानी के झरने थे, जिसको अपन जीवंत जल स्रोत या नेचुरल स्प्रिंग्स बोलते, वो रिवाइव होते हुए दिख रहे। बायोडाइवर्सिटी, जो जैव विविधता रहती है, बायोडाइवर्सिटी भी रिस्टोर हो रही है। और मेन यानी 3.5 मीटर से जो बाढ़ की रेखा जो थी, यानी बाढ़ की जो तीव्रता थी, वो 3.5 मीटर से वो कम होती हुई हमको दिख रही। इतना बेनिफिट हुआ है। और रामकुंड से लेके और 11 कुंड यानी टोटल 12 कुंड वो डिकॉन्क्रीटाइजेशन होने के बाकी। Tell me one thing now, in Nashik the protests have begun against the government for the chopping of 1800 trees at Tapovan for the construction of Sadhu Gram. How do you see that struggle? What is your stance? एक्चुअली आगामी शिवस्व कुंभ मेला जो आने वाला है उसके लिए हम शासन प्रशासन के साथ हैं। हम उनके साथ अनेक कुंभ मेला में हम लोगों ने उनके साथ काम वगैरह किया गया है। लेकिन इसके अंदर माइसी हब जो कमर्शियल प्रोजेक्ट था, मीटिंग इंसेंटिव कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन के नाम के नीचे जो कमर्शियल प्रोजेक्ट लाया गया है, वो कमर्शियल प्रोजेक्ट के हिसाब से इन लोगों ने जो कमर्शियलाइजेशन किया है साधु ग्राम के जगह का, उसका हमारा विरोध सारे उसके लिए ट्री कटिंग कर रहे हैं। साधु ग्राम या साधु संत महंत जो आने वाले देश भर से, अखाड़ा के जो लोग आने वाले, उनके लिए ट्री कटिंग नहीं है, ये कमर्शियल हेतु के लिए ट्री कटिंग है। इसलिए हमारा प्रोटेस्ट उसके विरुद्ध में चालू है। और ट्री कटिंग अगर करने का है तो उसके बारे में जो ट्री सेंसस होना चाहिए, उसका जो डाटा वगैरह होना चाहिए, वो डाटा या ट्री सेंसस कोई भी उसके बारे में उनके पास, कॉर्पोरेशन के पास नहीं, उसका डोकेद होना चाहिए। उसकी प्राधिकरण जो स्वतंत्र एटोनमस बॉडी जो सरकार ने बनाई हुई, एटोनमस बॉडी का भी कोई भी प्रकार का सेंक्शन यानी एडमिनिस्ट्रेटर जो सेंक्शन चाहिए वो भी सेंक्शन उनके पास नहीं। इसलिए हमारा प्रोटेस्ट है। The sadhus say the Sadhu Gram has to come up where it usually does. जो ताकतदार होता है उसी का विरोध होता है। तो अभी तक क्या सरकार ने आपसे कोई बात की है? ना, हम लोगों तो कोई प्रयास नहीं किए कि सरकार से, हम लोग ने तो इसको कोई मुद्दा ही नहीं मान रहे। ना कोई साधु संत इस प्रोजेक्ट में शामिल हुआ है आज तक। इसमें सब तरह के लोग हैं प्रोटेस्ट में, कोई साधु संत उसमें स्थल पर गया नहीं इस मुद्दे को लेके। और ना हम इसको कोई मुद्दा खास मानते हैं। जितना लोग तूल दे रहे हैं इसमें सब तरह के लोग शामिल हैं, जिनके मन में है कि यहाँ कुंभ ना हो, सनातन धर्म से हो सकता है अंदर से नफरत रखते हो, ऐसे लोग भी शामिल हो सकते हैं। तो ये हमारी सनातन परंपरा रही है कुंभ की। This place is replete with historic references. I am sitting at Gopika Bainsa Tas. The place was constructed in 1772. Gopika Bai was the mother of Madhavrao Peshwa, the 4th Peshwa of the Maratha Empire. On the banks of Godavari, lakhs of sadhus come every Simhastha Kumbh for a holy dip. I am at the confluence of Aruna River and Godavari River. This is considered a sacred place. We are at Ramkund and this is where the Shahi Snan happens or the Amrut Snan happens during the Kumbh. कुंभमेळा आला आहे 2026-27चा, तर त्या निमित्ताने त्यांना साधुग्राम उभारण्यासाठी ही जागा स्वच्छ करायची आहे आणि ती झालीच पाहिजे। कारण नको असलेली काही झाडं उगलेली आहेत आणि ते केल्याशिवाय त्यांना तिथे साधुग्राम उभारता येणार नाही। आणि जे दिसतं आहे की नुसतं तपोवनामध्ये खूप झाडं तुटत आहेत, तर त्यांचं जे काही आहे 2015मध्ये जसा जो आराखडा होता, इथे जी झाडं होती ती तशीच आबादित राहणार आहे, जुनी झाडं कुठली तुटणार नाहीत। ही जी काही पडीत जागेवर आपण एखाद्या पडीत जागेवर दुर्लक्ष केल्यानंतर जी झाडं उगतात, तर ती परत ती जागा वापरताना आपल्याला साफसफाई करावी लागते। त्या दृष्टीने ते काम करणारे करतायत। The BJP sees red in the protests. तपोवनात आता सध्या वृक्षतोडी संदर्भात जे वृक्षतोड करू नये म्हणून जे आंदोलन चालू आहे ते थोडं वेगळ्या स्वरूपानं चालू आहे असं आमचं मत आहे। तपोवनातली जी वृक्षतोड आहे ती सरसगट करावी असं काही भारतीय जनता पार्टीचं धोरण नाही आहे। भारतीय जनता पार्टीच्या माध्यमातूनच त्या ठिकाणी
यापूर्वी वृक्षारोपण केलेलं होतं, तिथं अतिक्रमण होऊ नये त्यामुळे. तर ते जे तिथं सुबाबुळं असतील, काही झाडं झुडपं असतील, बाभळी असतील, त्या ज्या तपोवनाच्या ज्या साधू संतांना राहण्याकरता जे टेंट करायचे त्याकरता ज्या अडचणीच्या ठरतात त्या ठरू नये म्हणून ते. तर ती जी वृक्षतोड होतीये ती वृक्षतोड काही सरसगट नाही आहे. वृक्षतोडीवर झाडं मोजण्याकरता जे रिमार्क मारलेले ते अधिकाऱ्यांनी किंवा मनपाच्या कर्मचाऱ्यांनी मारलेले, त्याचा गैरअर्थ काढून आंदोलनाला वेगळं स्वरूप देण्याचं काम काही जणांकडून होतंय. हे होऊ नये अशी आमची अपेक्षा आहे.